your second lecture, and today's topic, that is deficient demand, is the last topic in this unit. If you remember, the unit we are doing is determination of income and employment. Previously we have studied in our earlier videos excess demand. Excess demand की situation का just opposite होगा deficient demand. Deficient word, if this is a new word for you, इसका मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी होना. Deficient demand कैसे डिफाइन करोगे? The situation in which aggregate demand falls short of aggregate supply. Falls short का मतलब होता है कम हो जाना, किसी एक चीज से किसी दूसरे चीज का कम हो जाना. The situation in which aggregate demand falls short of aggregate supply in the economy is called deficient demand. आपने excess demand पढ़ा है? I haven't gotten any WhatsApp queries. WhatsApp queries एक भी question नहीं आए हैं. So if by chance you have not seen the previous videos, do watch the videos so that we can catch up on the questions. जैसा excess demand था उसका ठीक उल्टा हो जाता है deficient demand में. अलग अलग कारणों की वजह से aggregate demand कम हो जाता है इकोनॉमी में. किससे? aggregate supply से. So this is the definition part. How will I put it in a format? AD is less than AS. Aggregate demand is less than aggregate supply. So we will have to frame a formula for the deficient demand situation. How can we do that? Deficient demand equals to aggregate supply minus aggregate demand. AS minus AD. जहाँ पे DD is your deficient demand, AS is your aggregate supply, AD is your aggregate demand. ये हो गया आपका definition, ये हो गया उसका इसी definition का simple presentation, और ये हो गया आपका formula. This is very simple. There is no like rocket science in here. उसके बाद इसी चीज को deficient demand के situation को, if you have to do a graphical presentation for that, how we can do that? X Y axis as usual, origin, income, AD, AS. ये तो नॉर्मल वेरिएबल्स है जो आपको पता है. ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एक इंटरसेक्शन मिला आपको E. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे AD इक्वल्स टू ES. अब आपकी इकोनॉमी में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो शिफ्ट किस तरफ करेगा? डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा. अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो अपवर्ड शिफ्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है. इसको आपने डाउनवर्ड शिफ्ट कराया. अब आपको एक नया इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलेगा, दैट इज पॉइंट E dash. Please pay attention here. Initially you were having an intersection point for AD and AS, that was E. Now your aggregate demand has gone down. This is your new aggregate demand, and now you have a new intersection point with the same aggregate supply, that is your E dash. ठीक है, E से आप कहाँ पे आ गए? E dash पे. अब ये एक ट्रायंगुलर जो एरिया बन रहा है F E dash, ये एरिया आपको बता रहा है कि डिमांड कितना कम हो गया. दिस इंटरसेक्शन एरिया दैट वी आर गेटिंग हियर टेल्स यू कि डिमांड कितना कम हुआ. इनकम लोगे एक्स एक्सिस पे, ADAS वाई एक्सिस पे. आपका पहले ADAS बनाना है, फिर AD को डाउनवर्ड शिफ्ट कराना है. आपको दो इंटरसेक्शन के पॉइंट मिलेंगे. इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को अगर आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? Aggregate demand shifts downward from AD to AD dash. AD से कहाँ शिफ्ट हो गया? AD dash पे. Aggregate supply remains the same. AS क्या है? वही है. The equilibrium point shifts from E to E dash. Equilibrium point E से कहाँ शिफ्ट कर गया? E dash पे. Deficient demand का रीजन कौन सा मिला आपको? This is the reason. E F E dash. ये कौन सा रीजन है? जो ग्राफ में आपको ट्रायंगुलर रीजन मिल रहा है, that is your deficient demand.
अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने में ये लग रहा हो कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। देखो कैसे ड्रॉ करोगे। क्या ध्यान में रखना है सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए, ओरिजिन ले लीजिए। मेक श्योर दैट व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट यू आर पुटिंग, यू आर टेकिंग इनकम हियर and you will be taking ADAS here. You know that you have only one aggregate supply. Aggregate supply आपका चेंज नहीं हो रहा है तो उसको आप ड्रॉ करके रख लोगे। एक AD ले लो कि ये है AD, पहले जो इकोनॉमी में था इंटरसेक्शन में ना। अब डेफिशिएंट डिमांड जो सिचुएशन आप यहाँ पढ़ रहे हो, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, AD कम हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो ये नीचे शिफ्ट करेगा। जैसे ही नीचे शिफ्ट किया, दिस इज योर न्यू AD डैश। न्यू एग्रीगेट डिमांड। अब देखो इंटरसेक्शन का एक नया पॉइंट मिला आपको। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस नए एडी पे, तो आपको एक एरिया मिलता है। ये जो हैशटैग शेडेड एरिया है, ये आपको बताता है कि डिमांड कितना कम हो गया। इस पोर्शन से डिमांड कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ, इससे कम हो गया। कितना कम हुआ, इस एरिया के बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिशिएंट डिमांड। सो नाउ यू कैन सी कि आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ओके, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। Deficient demand, the situation in which aggregate demand falls short of aggregate supply in the economy is called as deficient demand. AD is less than AS. The formula is DD equals to AS minus AD. The graphical presentation, on the x-axis we are taking income, on the y-axis we are taking aggregate demand or aggregate supply. We have only one aggregate supply here because the freight that we are taking, there is no change in the aggregate supply. अब हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज करेगा, कम होगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको इंटरसेक्शन के, E एंड E डैश, और आपको एक ट्रायंगुलर रीजन मिलता है यहाँ पे जो आपको बताता है डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। इसी चीज को अगर आप एक्सप्लेन करोगे, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम AD to AD dash, AD to AD dash. Aggregate supply remains the same as it is AS. There is new equilibrium that is E dash जो आपको मिलता है। Deficient demand का रीजन कौन सा है, EFE dash, which is your triangular reason. तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉजेस, इसके इम्पैक्ट और इसको कैसे आप ठीक